students. Today we will discuss civics chapter Union Executive. Union Executive. Firstly, students, it is a first lecture of this chapter. Union Executive include the President, Prime Minister, and the Council of Ministers from Executive of the central government. Union, it is known as central. It means central government. यानी President, Prime Minister, and the Council of Ministers. It's the all of the Union Executive of the central government. Executive pass the laws. Executive pass the laws made by the legislature. And those laws passed by the executive, it is called the legislature, such as parliament. India is the parliamentary system. India has the parliament system, and there are two types of parliament. There is Lok Sabha and Raj Sabha. Lok Sabha is the lower house and Raj Sabha is the upper house. Here students, president, it is in India, President has the nominal head of the country. Nominal head of the any president is the constitutional of the nominal head of the country. So all powers are formally vested in him or her. Okay, student. And the Prime Minister is the real head. Prime Minister is the real head. Here, students, the first president in 3 years. I told you, President, Prime Minister, and Council of Ministers. First, President. President is the head of the state in a republic. Republic is an elected person. Yani President is an elected person, but it is elected indirectly, not directly. He holds office for 5 years. Yani his term है 5 years. यानी 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है. He can be re-elected after the expiry of his term. यानी अपने टर्म के बाद में वो 5 साल के बाद यानी दोबारा इलेक्टेड हो सकता है. अब स्टूडेंट देयर इज क्वालिफिकेशंस बिकम अ प्रेसिडेंट. यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? हियर स्टूडेंट्स, he or she can be citizen of India. यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए. He or she should be 35 years of age or more. यानी वह 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, he should not be bankrupt. यानी वो bankrupt नहीं होना चाहिए. यानी उस पर बैंक का बहुत सारा कर्ज या केस नहीं होना चाहिए. जो bankrupt होता है यानी जैसे कहते हैं दिवालिया हो जाते हैं, जैसे वो bankrupt नहीं होना चाहिए. And not have been sentenced by criminal court. यानी उसमें कोर्ट के द्वारा कोई भी केस भी नहीं चलना चाहिए. Not hold any office or profit under the government. यानी उसमें वो प्रेसिडेंट जब बनने के लिए हो तो उसमें कोई भी जो उसका टर्म होता है यानी गवर्नमेंट की ऑफिस पर यानी जो भी पोस्ट होती है उसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस यानी पोस्ट पे प्रॉफिट के लाभ के यानी प्रॉफिट पे वो ना हो, कोई भी लाभ के पद पर ना हो. अगर है तो उसे रेजिग्नेशन करना पड़ेगा. इलेक्शंस कैसे होता है प्रेसिडेंट का? देखिए, इलेक्शंस इट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज constituting the elected members of the Raj Sabha and Lok Sabha and the Vidhan Sabha of the states. Here students, president elected the Lok Sabha member. Students, it is elected by directly. Raj Sabha candidate and Raj Sabha member elected by the इनडायरेक्टली. यानी ये इनडायरेक्टली किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और ये डायरेक्टली जनता के द्वारा. यानी स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन हेल्ड बाय द पीपल्स. यानी दोज हैव द राइट टू वोट. यानी जिनके पास वोट का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार, जो जनता के द्वारा इलेक्शन होता है, जनता के द्वारा यानी वो क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होता है. और जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम खुद चुनते हैं, सच एज लोकसभा मेंबर,
विधानसभा मेंबर, ये सब जो वोटिंग करते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट इन्हीं के द्वारा यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। केवल राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर एंड विधानसभा जो मेंबर्स होते हैं सभी स्टेट के, वो इनके लिए वोटिंग करते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। प्रेसिडेंट रिजाइन यानी जब प्रेसिडेंट अपना रिजाइन, और टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट 5 ईयर, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट 5 ईयर यानी 5 साल का टर्म होता है। एंड प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइनिंग, ये प्रेसिडेंट रिजाइन करता है फ्रॉम ऑफिस यानी अपने ऑफिस से, तो टू द वाइस प्रेसिडेंट यानी अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपना रेजिग्नेशन लेटर सेंड करते हैं। अब प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव कैसे किया था स्टूडेंट्स? प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव हम कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर है कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, यानी एक उस पे राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों को ज्वाइंट में बुला के एक बिल पारित किया जाता है, तब जाकर प्रेसिडेंट का कोई भी जो प्रोसीजर है जो उस पे उसको उसकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। यानी बोथ हाउस जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं तब उसको रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पे एंड अलाउंस यानी जो प्रेसिडेंट की जो इंडियन फेडरल जो फेडरेशन है उसको जो मंथली पे करते हैं वो 5 लाख पर मंथ, यानी जो सैलरी होती है प्रेसिडेंट की वो 5 लाख पर मंथ होती है। ही गेट्स सच फैसिलिटीज एंड अलाउंस एज में डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी सैलरी के अलावा जो उसकी फैसिलिटी डिसाइड होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम इलेक्टेड, टाइम टू टाइम डिसाइडेड होती रहती है। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑल।